Welcome to Virtual Classroom in blended learning mode, brought to you by DGT, hosted by Nimi Chennai, and this session is co-hosted by NSTI Calicut, Kerala. My name is Prasad. Today, we'll be discussing about nuclear power plant. Now you will be able to see a picture of a nuclear power plant. You are seeing a big cylinder sort of thing. It is known as cooling tower of this nuclear power plant. And this nuclear power plant, it is situated near some rivers or seas generally to ensure water availability. आप अभी देखता है न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसमें बड़ा सिलेंडर जैसा दो आइटम दिख रहा है, वो है उसका कूलिंग टावर. आप देखें तो आसपास एक नदी भी देखता होगा. जनरली ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई नदी के किनारे और समुद्र के किनारे होता है क्योंकि उसको पानी का अधिक आवश्यकता होगा. ओके, अभी ये जनरेटिंग स्टेशन क्या करता है? जनरेटिंग स्टेशन और पावर प्लांट उधर बल्क इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. whenever bulk requirement of power is required, we are using generating stations or power plants. What will be there in generating station or power plant? There will be alternator. What is alternator doing? It is producing electricity. In India, 11 kV is the voltage of electricity production. Or the alternator has to be rotated by a prime mover. Now what is happening here? One energy will be coming to prime mover. Different types of energies are there. Okay, thermal, nuclear sort of energy will be there. That energy will be converted to electrical energy. इधर क्या होता है पावर प्लांट में? अल्टरनेटर तो पावर प्रोड्यूस करता है. इंडिया का जनरेटिंग वोल्टेज कितना है? 11 kV. क्या अल्टरनेटर को चलाने के लिए क्या चाहिए? कोई प्राइम मूवर चाहिए. तो प्राइम मूवर चलाना है तो उसके लिए कोई एनर्जी चाहिए. सो सभी पावर प्लांट में प्राइम मूवर चलाता है और उससे अल्टरनेटर भी रोटेट हो करेगा. अल्टरनेटर पावर प्रोड्यूस करता है. उसके अनुसार प्राइम मूवर के अनुसार हमको बता सकता है स्टीम पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन and nuclear power plant वगैरह. We can classify or we can have some names like this: steam power station where steam will be used to rotate, and hydroelectric power station, water will be used to rotate the turbine, energy of water, and diesel power station, fuel will be the diesel, and here nuclear energy is being used in the nuclear power plant. Okay, so today we will be detailedly discussing about nuclear power plant. हम आज डिस्कस करना है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में. बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स, वी विल बी जस्ट सीइंग द स्प्लिट अप ऑफ पावर प्रोडक्शन इन इंडिया. शुरू करने से पहले हम ये देख रहेंगे कितना एनर्जी कितना प्रतिशत में इंडिया में उपलब्ध है और यूज करता है. आप देखें तो बस आ रहा है कोल और थर्मल पावर स्टेशन में भी 54% है ज़्यादा. ओके, coal it is used for electricity production in India mainly. And you will be able to see RES तो क्या है? RES renewable energy source. Okay, and sun, wind, biomass, like those items are known as renewable energy sources, and it is almost having 23.5%. And the nuclear, what we are going to discuss today, it is having 1.9% of the total electricity production. और उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इट इज हैविंग 12.4% of the total production. And gas power plant is there and it is 6.9, and diesel also is produced in a less quantity, 1.1% only, and lignite with thermal energy only 1.7% it is being created. Okay, so ये इंडिया का पावर प्रोडक्शन उसका ब्रेकअप है. बहुत ज़्यादा कोल ही है, लेकिन जो अभी आज डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियर है. 1.9% होगा.
अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है. इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन न्यूक्लियर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Now we will be seeing the steps in energy change. So there is a first item, it is known as nuclear reactor. Inside the nuclear reactor, nuclear fission is happening. Nuclear fission, वो देखेंगे हम क्या है बाद में. तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, भारी हीट एनर्जी मिलेगा न्यूक्लियर फिशन से. सो किधर करता है न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर रिएक्टर में. सो इन द न्यूक्लियर रिएक्टर nuclear fission is happening, and due to that heavy amount of heat energy will be produced. We'll be detailedly discussing how the heat energy is being produced by the nuclear fission. Now after producing the heat will be exchanged. So heat बनाया और रूप में वो चेंज करना है. The heat will be converted into steam. वो उसका जगह है, वो that area it is known as, or that component it is known as heat exchanger. In the heat exchanger, the heat will be used to change the water to steam. In the heat exchanger, the water will be converted as steam. तो अभी heat energy क्या होता है, steam energy. So this is the second unit we can say, or second component, heat exchanger. The third it is turbine. अभी steam बनाए है पानी से, वो steam आएंगे turbine को. The steam it is flowing with high temperature and high pressure to the turbine, and it is creating mechanical energy. तो steam अभी आता है, वो hit करेगा टर्बाइन का ब्लेड को, वो रोटेट करने के लिए शुरू करता है. So the turbine blades will be hit by the steam which is having high temperature and high pressure, and because of that it is rotating the turbine. So energy it is converted from steam energy to mechanical energy. अभी टर्बाइन पे क्या होता है, वो steam energy अभी mechanical energy बनाता है, और मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, टर्बाइन को रोटेट करेगा. तो अल्टरनेटर सेक्शन में क्या होगा, अल्टरनेटर सेक्शन पे ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है. In this alternator, you will be able to see the mechanical energy of rotation. It is converted into electrical energy. So this is the energy conversion happening in nuclear power plant. First, nuclear energy, by nuclear fission, heat energy is being produced. Then the heat energy is converting water to steam, and the steam will be rotating turbine, and the turbine will be producing mechanical energy, and that will be rotating alternator, and alternator will be creating electrical energy. So this is the energy conversion pattern in nuclear power plant. ये हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट से. पहले हो गया हीट एनर्जी न्यूक्लियर फिशन द्वारा, वो हीट पानी को स्टीम बनाता है, और स्टीम टर्बाइन को चलाता है, और टर्बाइन अल्टरनेटर को चलाता है. फाइनली हमको मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी हम एक पिक्चर देखेंगे डायरेक्टली. ये पहला सेक्शन उसको बताता है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर. एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में होगा न्यूक्लियर रिएक्टर और हीट एक्सचेंजर. तो पहला वाला ये चीज है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर. द फर्स्ट आइटम इट इज कंटेनमेंट स्ट्रक्चर विच इज ए स्ट्रॉन्ग एरिया. we'll be telling the detail later. So this is the containment structure where we'll be having the reactor, nuclear reactor and heat exchanger. Okay, in the second section you will be able to see the turbine and the generator. The turbine and the generator. What is generator doing? Generator will be generating electricity, or it is alternator. AC power produce करता है और बाहर टावर से लेके लोड सेंटर को मिलता है. अभी ये दूसरा सेक्शन में अल्टरनेटर है. अल्टरनेटर पे क्या करता है, अल्टरनेटर ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो ये जनरेटर और अल्टरनेटर को रोटेट करने के लिए टर्बाइन है, ये स्टीम टर्बाइन है. ओके, सो स्टीम टर्बाइन. सो दिस स्टीम टर्बाइन इट इज रोटेटिंग अल्टरनेटर. तो स्टीम टर्बाइन कैसे चलाता है, वो स्टीम से. सो स्टीम किधर से आएंगे, वो पहला सेक्शन का हीट एक्सचेंजर से. ओके, तो नीचे क्या सेक्शन है, आप देखा है कुछ इधर, ये है कंडेंसर. ओके, ये टर्बाइन से जो बाहर आता है स्टीम, उसको कूल करेगा, उसको ठंडा बनाएगा, क्योंकि उसका एफिशिएंसी बढ़ाना है. तो इधर आपको देख सकता है
एक आइटम है कंडेंसर. सो दिस इज a condenser item. It is known as condenser. The item, it is cooling the steam from turbine output to increase the efficiency, and the cooled water will be going to heat exchanger again. Okay. ये है कंडेंसर. कंडेंसर स्टीम आउटपुट को कूल करेंगे. तो वो कूल करने के लिए ये इधर एक भी आइटम होगा, उसका नाम है कूलिंग टावर. कूलिंग टावर ये पिक्चर में नहीं दिखा है. कूलिंग टावर होगा इधर, हम बाद में देखेंगे वो. सो दिस इज द सेक्शंस इनसाइड ये न्यूक्लियर पावर प्लांट. सो फर्स्ट सेक्शन मेजर, इट इज न्यूक्लियर रिएक्टर and the turbine and the alternator, condenser. We will be explaining one by one what is happening inside this item. So before going detail, हम advantages क्या क्या है देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का. विल बी सीइंग द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. पहला है क्या, उसका फ्यूल बहुत कम ही चाहिए. वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज ओनली रिक्वायर्ड. व्हाट इज फ्यूल? इट इज न्यूक्लियर फ्यूल. उसका नाम है यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम जैसा मटेरियल. वो 1 किलोग्राम से बहुत सारा मेगावाट्स ऑफ पावर ले सकता है. थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स का कोल उसका एक्सचेंज कर सकता है. ओके. 1 किलो कोल, 1 किलो यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूल यूज करे तो thousands of kilograms of coal need not be used. Okay, thousands of kilograms of coal can be replaced by nuclear fuel. So nuclear fuel इतना कम ही चाहिए. The quantity is very less. That is the main advantage. So quantity is very less means what? The transportation will be very easy. We can easily transport the nuclear fuel. Okay, and what is the next? Less space. It is requiring less space. सोचो अभी स्टीम पावर प्लांट है हमारे पास, एक 1000 मेगावाट का स्टीम पावर प्लांट. ये 1000 मेगावाट का स्टीम पावर प्लांट कंपेयर किए तो ये न्यूक्लियर प्लांट का साइज बहुत कम होगा, क्योंकि उसमें बॉयलर वगैरह चीज नहीं है. सो इट इज रिक्वायरिंग लेस स्पेस. इन द सेम कैपेसिटी ऑफ स्टीम पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट, द न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी हैविंग लेसर स्पेस रिक्वायरमेंट. व्हाट इज द थर्ड आइटम? इट इज हैविंग लो रनिंग कॉस्ट. रनिंग कॉस्ट इसमें कम है. दो तरह का कॉस्ट बताता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट. पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ चाहिए, वो कैपिटल कॉस्ट बताता है. ये रनिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत कम होगा. द रनिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट इट विल बी कंपैरेटिवली लेस with respect to bulk power. Actually, we will be able to produce thousands of megawatts of power with a small running charge. So that is the advantage for nuclear power plant. So running cost is comparatively less, and this is very economical for bulk producing of electricity. Thousands of megawatts with lesser cost can be produced by nuclear power plant. क्या है वो? ज़्यादा economy है. economy है पूरा चीज का फाइनल वर्ड, वो इकोनॉमिकली है, इकोनॉमिकल है बल्क पावर प्रोड्यूस करे तो. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट गुड एडवांटेज? दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी लोकेटेड नियर टू द लोड सेंटर्स. तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है लाइक चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, इफ यू आर installing a nuclear power plant, it need to be very remote area. It can be almost located within 50 kilometers. So what is the advantage? It is not requiring heavy cost of transmission. आसपास से ही मिलेगा. okay? वो उसको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, पानी और कोल का आवश्यकता भी नहीं है. उसके लिए हम लोड सेंटर के आसपास ही रख सकता है. और एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट एडवांटेज? वी आर हैविंग प्लेंटी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स. अभी भी बहुत सारा क्वांटिटी में न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम अभी भी मिलता है. यूरेनियम बहुत सारा यूज़ करता है लार्ज डिपॉजिट से पूरा दुनिया में. तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और भी हम ये बना सकता है. सोचो फोसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल वो वगैरह है तो वो कम करते ही रहता है. ये सोर्स कम होता है. नॉर्मली फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, एवरीथिंग इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. We know the price is getting increased always. So
it is having reduction in fossil fuel, but nuclear fuel it is still available. Okay, so that is advantage. And this is having high reliability of operation. Safety का issue इतना खतरा नहीं है. Proper सेफ्टी मेशर्स है तो वो ज़्यादा रिलायबिलिटी उससे मिलेगा. बहुत सारा रिलायबल है. रिलायबल तो विश्वास्यता, नंबर ऑफ ईयर्स ऑपरेट कर सकता है कोई प्रॉब्लम बिना. सो दिस इज रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन. और उसके लिए कोई डिसएडवांटेज भी है, वो भी देखेंगे हम अभी. क्या है? ये न्यूक्लियर फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है. न्यूक्लियर फ्यूल एक्सपेंसिव है. सो कोल थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम हमने बताया, 1 किलोग्राम न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में बताया, लेकिन 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए भी कॉस्ट ज़्यादा है. सो इट इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू रिकवर. एक बार यूज़ किए तो वो फिर भी यूज़ करता है, लेकिन वो फिर यूज़ करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना है. ओके, सो रिकवरी बहुत मुश्किल है. रिकवरी, वी कैन यूज़ द न्यूक्लियर फ्यूल and we can reuse also, but the reuse requiring lot of process. Okay, it is very difficult to recover and reuse, so that is a disadvantage. And the capital cost is very high. Capital cost, installation cost और पहला इन्वेस्ट करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है. कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो एक्सप्लोशन भी हो सकता है. तो कैपिटल कॉस्ट इट इज़ वेरी हाई because of the safety reasons and technology reasons. And what is the next item? Erection and commissioning of the plant require greater technical know-how. हमको देख सकता है अभी इंडिया भी बहुत सारा विदेश राष्ट्रों से टेक्नोलॉजी ले लिया है खर्चा करके. सो टेक्नोलॉजी बाहर से लेना है, उसके लिए खर्चा करना ही पड़ेगा. ओके, सो इट इज़ हैविंग हायर कॉस्ट. इंडिया में उसका टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, लेकिन अभी पूरा तरह में आया नहीं. So erection and commissioning, it is requiring greater technical know-how. And the main problem is we can use nuclear energy, and after usage of this fuel, no, it is having radioactive pollution. Radioactive pollution, अब सुना होगा, उससे कैंसर भी होगा. So there may be chances of health hazards. So it is creating health problems. And these nuclear power plants are having high maintenance charge because of the safety issues. There is trained personnel. बहुत आदमी ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेट करना बहुत सेफ्टी के बारे में सोचे तो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है. रेडियो एक्टिविटी होगा, सो नहीं लेना है पूरा रेडियो एक्टिविटी. हेल्थ प्रॉब्लम होगा. प्रॉपर तरीके में हैंडल किया तो वो डैमेज भी हो सकता है, पूरा एक्सप्लोड भी कर सकता है. So maintenance charges are very high because of high salaries of trained personnel. उसमें आदमी चाहिए, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग भी मिलेगा. इतना जानकारी वाले आदमी को हाई सैलरीज देना भी पड़ेगा. ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए सूटेड नहीं है. सोचो, एक बार हमको 1000 मेगावाट में चलाना है, कुछ समय 500 वाट में चलाना है. ओके, ऐसा वेरिंग करे तो वो इधर सूटेड नहीं है. द न्यूक्लियर पावर प्लांट इट इज नॉट सूटेड फॉर फ्लक्चुएटिंग और वेरिंग लोड्स. विल बी टेलिंग व्हाई इन द लेटर सेक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम इज द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स. एक बार यूज किए तो ये यूज किया फ्यूल ये बाहर लेना मुश्किल है, क्योंकि उधर से अभी भी रेडियो एक्टिविटी आता है. तो रेडियो एक्टिविटी बताया, कैंसर भी बना सकता है. तो वो प्रॉपर तरीके में स्क्रैप करना है. तो इट हैज टू बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड. जनरली इट इज डिस्पोज्ड इन सी. ओके, जनरली वो समुद्र में बहुत दूर जाके उसमें ट्रंच लेके उसके नीचे डालता है. ओके, ऐसा डिस्पोजल भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है न्यूक्लियर पावर प्लांट में. अभी कुछ और भी चीज़ देखेंगे डिसएडवांटेजेस के बाद. चॉइस ऑफ साइट. आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर देख सकता है और किधर इंस्टॉल कर सकता है. विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द चॉइसेस ऑफ साइट फॉर द न्यूक्लियर पावर स्टेशन. फर्स्ट इज availability of water. It is requiring good amount of water and it will be generally near to river or seaside. ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसी रीज़न में वो रिवर के साथ होगा
और सी साइड भी हो सकता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रॉपर अरेंजमेंट जब बना सकता है, जैसा हमारा न्यूक्लियर फ्यूल प्रॉपर तरीके में डिस्पोज कर सकता है। एक बार यूज किए तो भी वो प्रॉपरली स्टोर करना है स्ट्रॉन्ग रूम में, बहुत सारा तरीका है, कंक्रीट में स्टोर करना है। तो डिस्पोजल ऑफ स्टोर स्टोर इम्पोर्टेंट है। जिधर आसपास बहुत सारा दूर समुद्र में दे के डाल सकता है, वो डिस्पोजल वो वेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। ये हाइडल स्टेशन सोचो, हाइडल स्टेशन सोचो तो वो हिली एरिया पे ही होना ही है, पॉपुलेटेड एरिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना हिली एरिया और पानी भी लेना चाहिए। सो जनरली इट विल बी हाइडल स्टेशन विल बी इन रिमोट एरियाज, बट नो न्यूक्लियर पावर प्लांट it is generally away from populated area because of the safety issues. There is problem of danger of radioactivity, so there will be distance from populated areas, but ये हाइडल स्टेशन के तरह बहुत सारा रिमोट एरिया नहीं होना चाहिए। और अगला चॉइस रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हेवी इक्विपमेंट चाहिए, अल्टरनेटर वगैरह हेवी इक्विपमेंट चाहिए, वो इधर मूव करके लेना है तो क्या होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारा एम्प्लॉयज़ भी उधर चाहिए, तो सभी का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का साइट वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसमें बहुत सारा चाहिए। अभी हम देखेंगे क्या क्या पार्ट्स है न्यूक्लियर रिएक्टर में। पहला होगा न्यूक्लियर रिएक्टर एंड हीट एक्सचेंजर, देन स्टीम टर्बाइन, देन अल्टरनेटर। ये 4 सेक्शन अभी हमको डिटेलली डिस्कस करना है। अल्टरनेटर क्या है अभी आपको पता है। अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 11 केवी पे इंडिया में प्रोड्यूस करता है, और उसके लिए जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होगा और स्विचिंग गियर होगा, जैसा सर्क्यूट ब्रेकर, बस बार, आइसोलेटर वगैरह पूरा चीज उधर होगा। देखेंगे हम पूरा चीज। दिस इज द लेआउट ऑफ ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन। दिस इज ए layout of nuclear power station, total layout. So here nuclear reactor is available and heat exchanger is available, and the steam it is coming to turbine, and the turbine is getting rotated, and alternator is producing electricity, and after production it is stepped up by transformer, and it is going out to the grid like this. Okay, so ये पिक्चर में अभी ज़्यादा देखेंगे। अभी ये एरिया में क्या है, इधर है न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर और टर्बाइन। ओके, ये हमको ज़्यादा देखना चाहिए। अभी ये एरिया हम ज़्यादा देखेंगे। हियर वी आर सीइंग न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, so nuclear reactor, inside that heavy heat will be produced. ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बहुत सारा हीट होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पे हेवी हीट होगा, और हीट हो गया तो कोई मेटल को लिक्विड फॉर्म में बाहर चलाता है। ओके, सो सम हॉट मेटल विल बी कमिंग आउटसाइड। So because of the heat inside the nuclear reactor, some metal will be heated and that hot metal will be coming out, okay, to the heat exchanger. तो अभी क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, एंड न्यूक्लियर रिएक्टर से हॉट मेटल बाहर आता है, किधर आता है, हीट एक्सचेंजर पे। तो हीट एक्सचेंजर पे हॉट मेटल भी है, वो अभी हॉट भी है। ठीक है, तो हॉट मेटल इधर आएगा हीट एक्सचेंजर में। अभी हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में पानी इसी साइड से आता है, पानी, वाटर विल बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड, एंड जनरली it is in not that heat condition, and the water will be heated in this heat. The heat is from hot metal, and that heat will be taken by the water. पानी हीट किया तो क्या होगा, यस, स्टीम होगा। तो इधर हीट एक्सचेंज करता है, इसी साइड से इसी साइड को हीट एक्सचेंज करता है। तो हीट इज गेटिंग एक्सचेंज्ड, एंड द वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम,
and through a valve it is going to turbine. Okay, so ये स्टीम है, ये स्टीम का प्रॉपर्टी क्या होगा? अभी ये स्टीम बहुत हाई प्रेशर में होगा, हाई टेम्परेचर में होगा. ओके, सो दिस इज हैपनिंग हियर. आप इधर भी देख सकता है एक पंप होगा. ये पंप किसके लिए? ये हॉट मेटल रोटेट करने के लिए और सर्कुलेट करने के लिए. ये हॉट मेटल सर्कुलेट करने के लिए ये सर्क्यूट होगा, वो एक पंप के साथ काम करता है. तो एक पंप होगा, ये पंप ये हॉट मेटल को सर्कुलेट करता है और फिल्टर भी बनाया होगा. कोई मटेरियल उसमें है तो फिल्टर करना है. तो इसी साइड पे, ऊपर साइड पे हॉट मेटल है, आप देख सकता है, और नीचे क्या है? हॉट कोल्ड मेटल हो गया. तो कैसे कोल्ड हो गया? वो हीट एक्सचेंजर में कूल हो गया है. तो द हॉट मेटल इन द अपर पार्ट, hot metal in the upper part, it is going to the heat exchanger and it is getting cooled. क्यों cool होता है? Why it is getting cooled? Because of the water. Water is coming from this side and this water will be heated. So this hot metal here, it will be converted into cold metal. Okay, and the cold metal, it will be again pumped by the pump and it is circulating in this way. So this is a circuit of hot metal. सर्क्यूट हॉट मेटल है इसका. तो हॉट मेटल इसी साइड पे है, उसका हीट है, वो हीट ये हीट एक्सचेंजर में चेंज करता है, वो पानी स्टीम बनाता है. ये स्टीम से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम क्या करता है? टरबाइन को रोटेट करता है. ओके, ये इतना एरिया का हो गया हमारे लिए. वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो. बिफोर डिटेलली डिस्कसिंग, वी विल बी सीइंग with respect to a video. Let us say this is the nuclear reactor and there is a nuclear और reactor core. देख सकता है उधर nuclear fission होता है. जब fission होता है उसमें बहुत हीट होता है और ये हीट ज़्यादा प्रेशर भी बनेगा. ये हीट स्टीम और हीट एक्सचेंजर, ये है हीट एक्सचेंजर, उसको देता है. इसके अंदर पानी भी आता है, ये वाटर को क्या करेगा? स्टीम बनाएगा. तो इधर न्यूक्लियर फिशन होता है, वो हीट बनाता है, हाई प्रेशर it is converted into steam and steam it is rotating a turbine. Okay, it is rotating a turbine and turbine will be rotated and electricity will be produced and it is going to towers. This is alternator and steam turbine. The steam output of turbine which will be cooled by condenser. इधर condenser है, ये steam को cool करेगा, वापस heat exchanger को लेता है. तो ये है कम कंडीशन में बनाया. तो अभी हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है. न्यूक्लियर रिएक्टर इधर है, दिखता है आपको एक सर्कल, उसके अंदर है न्यूक्लियर रिएक्टर. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग डिटेलली अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर. ओके, सो दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर, heat exchanger. This is the nuclear reactor and hot metal is going outside and this is the heat exchanger and hot metal is converted into cold metal and the metal used is sodium. And in the nuclear reactor, what is the item? We are going to discuss what all are the items inside a nuclear reactor. वो डिस्कस करना है अभी. ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर में एक कंट्रोल रोड होंगे. In the nuclear reactor, there will be an item known as control rod. नाम ही नोट करना, अभी हम बताएंगे क्या उसका फंक्शन है. तो पहला आइटम है न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड और है एक फ्यूल रोड. फ्यूल रोड, इसका नाम है फ्यूल रोड. क्या है? फ्यूल रोड. ओके, ये फ्यूल रोड इधर बताता है वो क्या है? वो है यूरेनियम से बनाया है. दिस इज नोन एज फ्यूल रोड. सो द फर्स्ट आइटम वाज कंट्रोल रोड एंड नाउ वी आर टेलिंग अबाउट फ्यूल रोड एंड द थर्ड आइटम इट इज मॉडरेटर. मॉडरेटर. तो आप तीन मटेरियल का नाम सुना है अभी, कंट्रोल रोड, फ्यूल रोड एंड मॉडरेटर. ये किधर है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. किधर है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. सर आर जनरली 3 आइटम्स in the nuclear reactor. Inside the nuclear reactor, one control rod, one fuel rod and one moderator. We will be discussing why it is used. Okay,
and now you know the fuel rod, it is made of uranium, and the moderator is generally made of graphite. The moderator is generally made of graphite. Okay, and there will be a control rod, it is made of cadmium. The control rod, it is made of cadmium, CD, cadmium short form symbol है. कंट्रोल रोड cadmium से बनाया है. और ये पूरा चीज किधर रखा है, वो है कंटेनमेंट सेक्शन और प्रेशर वेसल. ओके, प्रेशर वेसल बता सकता है. ओके, नाउ व्हाट इज कूलेंट हियर? एक्चुअली इट इज द हॉट मेटल कूलेंट, जो हीट लेता है बाहर उसको बताएंगे कूलेंट. तो कूलेंट पहले पिक्चर का हॉट मेटल ही है. Okay, so this is the various sections in the nuclear reactor. Various sections in the nuclear reactor. Control rod made of graphite, and moderator rod made of control rod, it is made of cadmium. Moderator rod made of graphite, and the fuel rod made of uranium. All in contained in the pressure vessel. And the coolant, it is taking outside the heat. It is known as coolant. Here it is the hot metal or sodium metal. Okay. Now, going into detail, we have to discuss why heat is generated inside the nuclear reactor. अभी हमको डिस्कस करना है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट बनाता है क्यों. न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. एक न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फिशन. एक न्यूक्लियर रिएक्शन, सो न्यूक्लियर रिएक्शन है एक वर्ड. एक तरह का रिएक्शन है न्यूक्लियर फिशन. ओके, तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन का एक तरह है न्यूक्लियर फिशन. ये न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, तो एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम न्यूक्लियस को हिट करता है. ये है यूरेनियम न्यूक्लियस, आप पिक्चर पे देखता है. एक भारी एटम है, भारी न्यूक्लियस है एटम का. ओके, तो न्यूट्रॉन आता है, यूरेनियस को स्प्लिट करता है दो एटम से, वो बनाएगा न्यू दो एटम. द यूरेनियम न्यूक्लियस विल बी हिट बाय ए न्यूट्रॉन एंड न्यू टू nucleus are created, and new two atoms are created like this, and it is krypton and barium, and it will be releasing 3 neutrons. Okay, so this is known as nuclear fission. nuclear fission जानता है इसको. एक न्यूट्रॉन कोई एटम को हिट किया तो वो कम वेट का दो एटम बनाएंगे. ओके, इसको बताता है न्यूक्लियर फिशन. ओके, अभी इसमें दो न्यू एटम भी होगा, उसके साथ साथ बड़ा हीट भी होगा, बड़ा हीट भी होगा. ओके, तो क्यों हीट होता है अभी बताते हैं. सो द न्यूक्लियर फिशन इज दैट व्हेन ए न्यूट्रॉन इज हिटिंग यूरेनियम न्यूक्लियस एंड इट इज स्प्लिटिंग इनटू 2 krypton and barium with high amount of heat, साथ साथ वो 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है. सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन. तो हम क्यों हीट बनाता है वो बताएंगे अभी. ओके, तो यूरेनियम है हमारे पास, यूरेनियम और न्यूट्रॉन हिट करेगा, इसका न्यूक्लियस हिट करेगा. ओके, तो क्या बनाता है, तो ये है आउटपुट से इनपुट हो गया, आउट में बैरियम मिलेगा और क्रिप्टॉन मिलेगा और कुछ न्यूट्रॉन्स भी, जनरली 3 न्यूट्रॉन्स भी आता है. ओके, तो इसमें ये समझना है इसी साइड में, इनपुट साइड में जितना मास है इतना मास बाहर नहीं होगा. ओके, जितना मास पहला सिंगल न्यूक्लियस को है उतना मास ये बाद में 2 न्यूक्लियस को नहीं होता है. उसमें कुछ डिफरेंस है, मास का कुछ डिफरेंस होगा. इतना कोई डिफरेंस नहीं. एटॉमिक वेट बताए तो एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस ये ही होता है 0.0087. एक यूरेनियम न्यूक्लियस कट किए तो वेरी लेस, कंपैरेटिवली वी कैन से वेरी लेस मास इज reduced. Okay, so mass is getting reduced before and after the nuclear fission, and because of this, that mass, it is releasing high amount of heat. Okay, this mass difference will be creating high amount of heat. और ये mass difference उसको एक नाम से भी जानकारी रहता है, उसको बताता है mass defect. तो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट होता है और मास डिफेक्ट से
बहुत सारा हीट डेवलप करेगा, बहुत सारा हीट डेवलप करेगा। तो बहुत कम कम मास डिफरेंस ही है, लेकिन इतना बड़ा हीट उसमें रिलीज होगा ड्यू टू द मास डिफेक्ट। This has been found out by our scientist Einstein. आइंस्टीन वो इन्वेंट कर दिया और उसके लिए एक इक्वेशन भी बना दिया। ये हीट एनर्जी, जितना एनर्जी बाहर आएगा उसके लिए एनर्जी के लिए इक्वेशन दे दिया है। जितना डिफरेंस है मास का, मास डिफरेंस कितना है, ओके, फिशन के पहले और फिशन के बाद कितना डिफरेंस है मास का, और सी इट इज द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर, उसका स्क्वायर। So E is equal to mc square, that is a very famous equation, and based on this the heat energy produced by the nuclear fission is being given by Einstein. Okay, so ये स्मॉल मास डिफरेंस होता है। आटम तो इतना कम साइज का है, हमको जानता है, लेकिन उसमें भी स्मॉल मास डिफेक्ट है तो इतना बड़ा एनर्जी रिलीज होता है। तो कीवर्ड ये है मास डिफेक्ट। अभी हम देखेंगे, एक न्यूक्लियस को देखा हमने, एक न्यूक्लियस हिट कर दिया न्यूट्रॉन से, ओके, सो एक का एग्जाम्पल दे दिया, और क्या होता है उसमें 3 और न्यूट्रॉन बाहर आता है, ठीक है। एक सिंगल यूरेनियम उसको हिट किया तो वो बनाता है 3 फ्री न्यूट्रॉन। ये 3 फ्री न्यूट्रॉन फिर भी अगला न्यूक्लियस को हिट करेगा। Okay, there is one neutron which is hitting the uranium 235 and it is splitting into 2 and it is releasing 3 neutrons also. These released neutrons will be hitting further nucleus of uranium and it will be getting further 3 more neutrons in every particle, in every nucleus. So this is becoming a chain from one item to 3 neutrons, from the 3 neutrons 3 3 3 like 9, and it is increasing, so the heat energy will be increased so much. Okay, so this is known as chain reaction. So this is the chain reaction. After hitting one nucleus, it is releasing 3 neutrons, and the 3 neutrons will be further releasing further 3 nucleus, and that will be releasing 9 neutrons, and it will be further creating hitting 9 nucleus, and it will be creating multiple न्यूक्लियस। सो दिस इज कंटिन्यूइंग, ये चेन जैसा कंटिन्यू करता है, ओके, इसको बताता है चेन रिएक्शन। ओके, सो न्यूक्लियर फिशन ऐसा कंटिन्यू किए तो उसको बताता है क्या, इट इज नोन एज चेन रिएक्शन। सो चेन रिएक्शन इज दिस व्हेन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंटिन्यूइंग लाइक दिस, इट विल बी नोन एज चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, इतना उसका हेवी हीट रिलीज होगा, इतना भारी हीट होगा। ओके, क्या प्रॉब्लम है आप देख सकता है, अनकंट्रोल्ड हो गया तो, ये चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो एटम बॉम्ब बनाता है। ये चेन रिएक्शन जब वो अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो बताता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इनटू एटम बॉम्ब। ओके, सो द चेन रिएक्शन व्हेन इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस, when it is continuing and it is releasing heavy amount of heat, and it is used as the atom bomb. Okay, the uncontrolled chain reaction will be used to make atom bombs. हिरोशिमा नागासाकी आप सुना होगा, एटम बॉम्ब यूएस ने यूज किया है। ओके, सो इतना खतरनाक भी है, ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके में नहीं यूज किया तो इतना खतरनाक भी है वो। तो चेन रिएक्शन कंट्रोल किया तो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, अनकंट्रोल हो गया तो वो एटम बॉम्ब होगा। ओके, तो आपको अभी समझ में आया होगा क्या है उसका सेफ्टी इश्यू। ओके, तो सेफ्टी इश्यू ये है, प्रॉपर तरीके में कंट्रोल नहीं है तो वो खराब भी हो सकता है, एटम बॉम्ब जैसा एक्सप्लोड कर सकता है। ऐसा हो गया है दुनिया में, आप सुना होगा चेरनोबिल जैसा रशिया में। ओके, so the uncontrolled chain reaction may lead to explosions like this because of the heavy release of heat. You may have already heard about Chernobyl happening in Russia. The nuclear power plant itself has been exploded with the heavy heat. So it is requiring high safety precautions.
So uncontrolled chain reaction can be made into atom bombs and it can be produced to electricity also. The controlled chain reaction is used for producing electricity by producing heat, okay, in the reactor. So वापस आएंगे अभी न्यूक्लियर रिएक्टर में. न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने देखा कंट्रोल रोड है कैडमियम का और ये मॉडरेटर है ग्राफाइट का एंड यूरेनियम है फ्यूल रोड. तो फ्यूल रोड आपको जानता है उसका यूज़ क्या है. ये उसका न्यूक्लियस को स्प्लिट करेगा. सो ये है फ्यूल, यूरेनियम है फ्यूल, उसको बताता है फ्यूल रोड. तो फ्यूल का यूज़ इधर हीट जनरेट के लिए, फिशन होना है और हीट जनरेट करना है. सो यूरेनियम इज टू मेक दिस फॉर द फिशन एंड क्रिएटिंग हीट. देन व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल रोड. कंट्रोल रोड किसके लिए यूज करता है. कंट्रोल रोड इसके लिए ये न्यूट्रॉन हिट करता है न्यूक्लियस को. ये न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम अधिक हो सकता है. ओके, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा रिएक्शन होने का चांस है. तो क्या करना है, हमको ये न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करना है, रिमूव करना है. ये न्यूक्लियर रिएक्टर से अब्सॉर्ब करना है. ये कैडमियम और कंट्रोल रोड इट इज़ ए न्यूट्रॉन अब्सॉर्बर. न्यूट्रॉन अब्सॉर्बर ये कंट्रोल रोड ये करेगा, उसको न्यूट्रॉन को, फ्री न्यूट्रॉन को कम करेगा, निकालेगा. ओके, कंट्रोल रोड निकालेगा. आप देख सकता है एक कंट्रोल रोड ऊपर रखा है, वो नीचे भी ले सकता है, ऊपर भी वापस ले सकता है. सो कंट्रोल रोड जितना नीचे आता है उतना न्यूट्रॉन उधर से लेंगे. सो नीचे आए तो क्या होगा, इफेक्टिव फिशन विल बी रिड्यूस्ड. जब नीचे आता है तो फिशन कम होता है, जब ऊपर चलाता है तो उसका ज़्यादा फिशन होता है. ओके, तो कंट्रोल रोड न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करने के लिए. अभी मॉडरेटर क्या है, उसका पर्पस. मॉडरेटर आप सुना होगा, ये डिस्कशन में टीवी न्यूज़ चैनल पे डिस्कशन है तो एंकर बताता है तो मॉडरेटर बता भी सकता है उसको. वो क्या करता है, ये डिस्कशन में कोई तेज से बताता होगा, ज़्यादा एंग्री भी बोल के बताता होगा. ओके, सो सभी को संभाल के रखना है, वो मॉडरेटर का काम है डिस्कशन में. ओके, संभाल के रखना है. तो मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करता है, तो ये न्यूट्रॉन का स्पीड कंट्रोल करता है. बहुत ज़्यादा स्पीड और चले तो ज़्यादा फिशन हो सकता है, तो ये स्पीड कंट्रोल कर सकता है. ये न्यूट्रॉन का स्पीड कंट्रोल कर सकता है मॉडरेटर. ओके, जितना फिशन होना चाहिए वो मॉडरेट करेंगे मॉडरेटर ग्राफाइट. ओके, सो ये होता है मॉडरेटर. सो मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर इज कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन फ्लो and control rod it is removing or absorbing the neutron, and uranium is the fuel rod which is used for the nuclear fission. Okay, and the entire item is contained, these particular items are contained in a pressure vessel. बताया वो explosion भी हो सकता है, तो heavy concrete का heavy wall thickness वाला वेसल होगा, उसके अंदर रखा है पूरा चीज. ओके, स्ट्रॉन्ग, बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला ब्लॉक होगा, उसको बताता है प्रेशर वेसल. So this is contained in a pressure vessel and this is entirely contained in a containment. Okay, so heat exchanger के बारे में अभी बताया, पानी इसके अंदर आता है और स्टीम बाहर जाता है. तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट आता है वो मेटल बाहर लेता है, उसको कूलेंट बताता है. इसका हीट एक्सचेंजर में एक्सचेंज करता है. तो अभी पानी हीट करके स्टीम बना के स्टीम बनाता है. तो इधर पानी अंदर और स्टीम बाहर. ओके, तो जो बताया हम, तो यूरेनियम है फ्यूल रोड, वो फिशन के लिए यूज़ करता है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए. मॉडरेटर ग्राफाइट का न्यूट्रॉन का स्पीड स्लो डाउन करने के लिए, और कैडमियम किसके लिए, न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करने के लिए कंट्रोल रोड बनाता है. कंट्रोल रोड. ओके, सो कंट्रोल रोड का पिक्चर अभी देखेंगे आप स्क्रीन में. ये कंट्रोल रोड है और फ्यूल रोड और मॉडरेटर भी देख सकता है. ये कंट्रोल रोड एडजस्ट कर सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कंट्रोल कर सकता है. जितना नीचे आता है और जितना ऊपर जाता है उसके अनुसार हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर भी कंट्रोल कर सकता है. ओके, बाय पुलिंग आउट द कंट्रोल रोड्स. ये जब बाहर चल दिया क्या हो गया, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होगा उसमें,
ज़्यादा न्यूट्रॉन हो गए तो ज़्यादा फिशन होगा, ज़्यादा हीट होगा। ओके, जब ऊपर मूव कर दिए तो उससे न्यूक्लियर रिएक्टर में ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे, और जब नीचे आ गया तो उसका रिएक्टर का एनर्जी कम होंगे। तो इधर राइटिंग मिस्टेक है, सॉरी, दिस इज रॉन्ग. Power of nuclear is reduced. Okay, I'll just correct it. Nuclear, it is just reduced. This is not increased, it is reduced. एक पिक्चर है फ्यूल रोड का. Okay, you'll be able to see the nuclear reactor inside, and the fuel rods in small pellets. It is kept in a container like this, and it will be put in the reactor. This is the control rod physical features. Control rod नीचे मूव कर सकता है, ऊपर चढ़ सकता है. Can be controllable control rods. And heat exchanger, what is the use of heat exchanger? The coolant or hot metal, it is giving the heat and it is taking पानी or water to steam. The heat exchanger heat exchange करता है किसका? hot metal steam के लिए. Okay, this is happening in steam heat exchanger. अभी steam turbine है इसमें steam turbine. Okay, steam turbine चलाता है. स्टीम टर्बाइन में क्या होगा? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम आता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम आता है, एंड इट विल बी फेड टू द steam turbine. Because of the high pressure high temperature, the turbine will be rotated, and due to the rotation alternator will be rotated. Okay, so the mechanical energy will be converted into electrical energy by alternator. Okay, so there is one item known as condenser. Okay, we'll be seeing the picture later. सो दिस इज द टर्बाइन. हमने टर्बाइन के बारे में बता दिया. सोचना नहीं, एक ही स्टेज है. टर्बाइन में 3 तरह का स्टेज हो सकता है. एक ही शाफ्ट में होगा, सिंगल शाफ्ट है, लेकिन ये शाफ्ट में हाई प्रेशर सेक्शन है, इंटरमीडिएट प्रेशर सेक्शन है और लो प्रेशर सेक्शन में भी है. सो इन द स्टीम टर्बाइन जनरली देयर आर 3 सेक्शंस. वन इज हाई प्रेशर, वन इज इंटरमीडिएट प्रेशर, दैट इज मीडियम प्रेशर, and one is low pressure. So the steam will be first coming into the high pressure section, and after that it is going out and coming back to the intermediate pressure section, and finally it is coming to lower pressure section. Why it is happening like this? Because the efficiency to be increased, the efficiency has to be increased. For that this much stages are given. In only one stage the efficiency of turbine will be very very less. आप देख सकता है a practical turbine. This is high pressure section और intermediate pressure section और low pressure section. जितना प्रेशर कम होता है उसके अनुसार उसका साइज बड़ा होता है. तो ये फिजिकल कंडीशन है टर्बाइन का. अभी हम देखेंगे कूलिंग अरेंजमेंट न्यूक्लियर स्टेशन में. ये पूरा सेक्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और ये सेक्शन में होगा हमारा कूलिंग. टर्बाइन से बाहर आता है स्टीम, उसको कूल करना है. The steam, it is coming out of turbine and it has to be cooled. Why cooling is required? Because the input to the turbine is high pressure high temperature steam. Okay, and the output also is generally high temperature. Generally high temperature will be there still. If the output is still at high temperature, the efficiency will be less. So how will be able to increase the efficiency? We can cool the steam. If the steam is cooled outside, so there is a difference in temperature input and output side of the turbine. So it will increase the pressure difference and it will help in increasing the efficiency. So हमको ये स्टीम जो बाहर आता है उसको कूल करना है. तो कूल करे तो क्या फ़ायदा है? ये स्टीम कूल किए तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी देगा टर्बाइन को. टर्बाइन का इनपुट क्या है? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम है. आउटपुट कूल हो गया तो ये डिफरेंस ज़्यादा होगा प्रेशर का, तो अच्छा काम करेगा. तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टीम टर्बाइन का आउटपुट का स्टीम कूल करना है. ये कूलिंग के लिए क्या क्या बनाए हैं? उसके लिए है कंडेंसर. ओके, तो कंडेंसर ये है स्टीम को कूल करने का इक्विपमेंट. ये कंडेंसर आप एक्चुअली देख लिया होगा, ये फ्रिज में और रेफ्रिजरेटर का बैक साइड पे
ये कुछ नेट जैसा एक आइटम है, उसको कंडेंसर बताता है। ओके, तो वो टच किए तो उसमें हीट भी होगा, तो ये रेफ्रिजरेटर का अंदर का हीट बाहर रिमूव करता है, उसके लिए कंडेंसर यूज कर सकता है। ऐसा कंडेंसर इधर भी है। ओके, कंडेंसर, सो इट इज रिमूविंग द हीट फ्रॉम द स्टीम, इट इज नोन एज कंडेंसर। सो हियर इट इज इन कंडेंसर का इनपुट क्या होगा, ऑलमोस्ट हीट हॉट स्टीम, और कंडेंसर का आउटपुट होगा क्या, जब स्टीम कूल किया तो पानी होगा। स्टीम व्हेन इट इज कूल्ड डाउन इट इज क्रिएटिंग वाटर, and that water will be again coming back to the heat exchanger. Okay, so the steam it is getting cooled, and that will be creating water, and that water it is taken by the feed water pump. The feed water pump it is taking the water to the heat exchanger again. So here you will be seeing the movement like this, ऑलमोस्ट हाई टेम्परेचर स्टीम है इधर, कंडेंसर के बाद कूल हो गया, पानी हो गया, वो कोई पंप लेके पंप के मदद से वापस हीट एक्सचेंजर को देता है। ये है कंडेंसर का काम। ओके, अभी ये कंडेंसर के बारे में बताया, तो कंडेंसर हीट लेता है, लेकिन कैसा, तो उसके लिए कुछ और भी चीज़ है, उसका नाम है कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर एक चीज़ है, वो बाहर से पानी लेंगे और ये पानी सर्कुलेट करेंगे ये कंडेंसर द्वारा, और वो बाहर निकालेंगे। ओके, so what happens, I'll tell again, there is water enough from the outside, and this cooling tower is taking water from the outside, and it is rotating to condenser, it is sending through condenser, and it is taking the heat of condenser, and the heated water will be coming outside to the cool water. Okay, so the condenser, inside the condenser heat is extracted by the cooling tower. So cooling tower का circuit एक और वाटर सर्क्यूट बता सकता है। ओके, दिस इज अनदर सर्क्यूट ऑफ वाटर ऑफ द cooling tower. So there will be cooling tower, there will be condenser. Let us see in the picture. So heat condenser is available here, inside the condenser heat is there, so some cool water is coming here from the cooling tower. कूलिंग टावर पानी लेता है नदी से, कोई पंप के मदद से ये जाता है बाहर, और ये कंडेंसर द्वारा बाहर आता है। सो क्या होता है, ये कंडेंसर का हीट इधर ये लेंगे, ये पानी लेंगे और बाहर वेपर जैसे बाहर लेंगे, वेपर, यू विल बी सीइंग दैट आइटम नाउ। सो दिस इज द सर्क्यूट। सो ये कूलिंग टावर है, दिस इज द कूलिंग टावर, and water will be circulated through this way. Water will be circulated through this way. What is happening? By this way water is moving, so that the turbine output temperature steam ना, उसका heat इधर लेंगे। So turbine का output है इधर, उसमें steam का temperature ज़्यादा है, लेकिन इधर condenser है, ये condenser उसका heat लेंगे और cooling tower condenser को cool करेंगे। Okay, so this is the structure of cooling tower and condenser, and physically you will be seeing like this. Okay, now this red line, it is water, hot water from the condenser. The hot water from the condenser it is coming, hot water from the condenser it is coming like this, and it will be sprayed, रेड एरो देख रहा है आपको, रेड एरो नीचे पानी स्प्रे करेगा। ओके, नीचे पानी स्प्रे करेगा, और नीचे क्या है, नीचे कूल वाटर है, कूल वाटर, ये कूल वाटर पे ये डालेगा और ये वेपर जैसा बाहर जाएगा। ये कूलिंग टावर में काम होता है। ओके, कूलिंग टावर में ये क्या होता है, अब देख सकता है, ये कूलिंग टावर है, ये कूलिंग टावर का क्या है, हॉट वाटर आता है, हॉट वाटर किधर से आएगा, कंडेंसर से। तो कंडेंसर से कूल हॉट वाटर आता है, इधर स्प्रे करेगा नीचे, यू विल बी एबल टू सी द वाटर, हॉट वाटर इज स्प्रेइंग डाउनवर्ड्स, and it is taking the coolness of water from the bottom, and that will be creating vapor, and vapor will be going out. Okay, so cooling tower आप देख सकता है बाहर vapor, water vapor, it is going outside of the cooling tower. So this is happening inside the cooling tower. Okay, अभी हम क्लासिफाई करेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन को। न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्लासिफाई करें तो
वो न्यूट्रॉन एनर्जी कितना है उसके अनुसार बता सकता है। थर्मल रिएक्टर है उसके लिए। थर्मल रिएक्टर अभी तक जो हमने बात किया वो थर्मल रिएक्टर ही है। जो अभी हम तो बात किया वो थर्मल रिएक्टर ही है। न्यूट्रॉन एनर्जी के बारे में बताया तो और एक टाइप है, इट इज नोन एज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, now we are telling about the classification of nuclear power station. It is based on the nuclear energy. Whatever we have discussed now, it is thermal reactor only. And one more section is there, it is known as fast breeder reactor. What is fast breeder reactor? Actually, fast breeder reactor which is creating fuel again. सोचो हमारे पास यूरेनियम है, एक बार यूज किया, नया टेक्नोलॉजी आया है, वो सेम फ्यूल रीयूज कर सकता है। फ्यूल रीयूज कर सकता है। क्या है, हमारे पास फ्यूल है, यूज किया, फिशन से यूज किया, ये यूरेनियम फिर भी यूज कर सकता है, तो वो बता सकता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तो कन्वर्शन करता है, यूज किया न्यूक्लियर फ्यूल से फिर भी यूज कर सकता है, तो उसको बताता है कन्वर्शन। ज्यादा कन्वर्शन जिधर होता है उसको बताता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, so when we are able to use this sort of item fast breeder reactor में जनरली न्यूट्रॉन का स्पीड ज्यादा होगा, ज्यादा फिसल मटेरियल फिर भी बनाता है। ओके, it is thermal reactor, the normal whatever we have discussed, and fast breeder reactor which is again creating more fissile material, that is uranium sort of things reuse करने के लिए बनाता है। अभी कूलेंट के बारे में, ओके, कूलेंट पानी भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है और लिक्विड और मेटल कूल भी हो सकता है। लिक्विड मेटल कूल्ड हमने बताया, सोडियम मेटल कूल करता है, हमारा क्लास में बताया, वो मेटल कूल हो गया, लिक्विड मेटल कूल्ड हो गया, हमने ये देख लिया हमारा क्लास में लिक्विड मेटल। गैस कूल भी हो सकता है और वाटर कूल भी हो सकता है। ओके, वाटर कूल भी हो सकता है। सो कुछ एरिया में वाटर कूल करता है, हेवी वाटर बताता है उसको, हेवी वाटर विल बी यूज्ड फॉर कूलिंग एंड मॉडरेशन भी हेवी वाटर यूज करेगा। ओके, तो कूलेंट के बारे में ये तीन है। और कोर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस पुराने तरह का है, अभी ज्यादा नहीं यूज करता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस तो क्या है, फ्यूल सेक्शन डिफरेंट होगा, कूलेंट डिफरेंट होगा, मॉडरेटर ज्यादा डिफरेंट होगा, ये सभी सेपरेट हो गया तो उसको बताता है हेट्रोजेनस न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, so these are the few classification of the nuclear power plant, and you will be able to see the references like this, NIMI 4th semester and power plant system of VK Mata, and you will be able to see the video is in NIMI channel. Okay, let us see one more thing today, it is gas turbine power plant. Okay, now what is gas power plant? Where alternate is rotated by a gas turbine. Okay, अभी हमारा alternator है and that will be rotated by a gas turbine. So alternator rotated by gas turbine, it is known as gas turbine power plant. We'll be seeing what are the components. In a gas turbine power plant, there will be a compressor, there will be a regenerator, there will be a combustion chamber, there will be a gas turbine, there will be alternator and a starting motor. We'll be discussing all these things. Okay, so compressor होगा, हम देखेंगे। अभी ये है स्कीमेटिक, गैस टर्बाइन पावर प्लांट का स्कीमेटिक ये है। तो इधर का फ्यूल क्या है, ये फ्यूल ऑफ दिस गैस टर्बाइन पावर प्लांट, इट इज एयर। ओके, एयर इज द फ्यूल, एयर इज द फ्यूल और सोर्स ऑफ energy, we can say. Air is being taken from the atmosphere. Okay, so air is taken from the atmosphere through some filter. So here air is the fuel, that is air will be compressed in the compressor. Okay, अभी compressor क्या है, air को compress करेंगे। compress करें तो क्या होगा, air का temperature बढ़ेगा, pressure बढ़ेगा, air का temperature बढ़ेगा, pressure बढ़ेगा। ओके, ये प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। नॉर्मल एयर है तो बहुत सारा एरिया पे है, लेकिन कंप्रेस हो गया तो उसका वॉल्यूम कम होता है। व्हेन द एयर इज कंप्रेस्ड, इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इट इज प्रेशर इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम विल बी डिक्रीजिंग। नाउ दैट एयर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर
it is coming to area which is known as combustion chamber. उधर तो क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर फ्यूल और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर को कोई फ्यूल से बर्न करेगा, फ्यूल में भी डीजल बर्न करके उसका टेम्परेचर और भी बढ़ेगा। तो क्या है ये कंबस्टन चेंबर का आवश्यकता, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंबस्टन चेंबर? इन द कंबस्टन चेंबर ऑयल जनरली डीजल विल बी फायर्ड, आग लगाएगा डीजल को। तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर इधर आता है, उसको और भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ओके तो ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर स्टिल हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर will be sent to a turbine which is known as gas turbine, and because of its high temperature high pressure and this turbine will be rotated and the turbine will be coupled to alternator. Okay, alternator is producing electricity. So the air compressed item, it is coming to finally to gas turbine. Okay, तो गैस टर्बाइन का आउटपुट क्या होगा, वो एक्सॉस्ट गैस हो गया, एयर ही हो गया लेकिन उसका टेम्परेचर अभी भी ज्यादा होगा। ओके, गैस टर्बाइन का आउटपुट इट इज स्टिल हाई टेम्परेचर एयर, प्रेशर कुछ कम हो गया होगा, द प्रेशर में बी रिड्यूस्ड बट स्टिल द टेम्परेचर विल बी वेरी हाई। ओके, सो हियर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी on the way of the exhaust, what we are doing, it is again heating the compressed air. ये compressed air का रास्ता है, ये रीजनरेटर बताएंगे, रीजनरेटर, ये चेंबर है रीजनरेटर। तो इसमें क्या है, ये एक्सॉस्ट गैस उसका ज्यादा हीट है, ये इसी रास्ता पे जाएंगे बाहर। ये इस चेंबर में क्या होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर है, तो ये इनकमिंग एयर का टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है एक्सॉस्ट गैसेस के वजह से। तो एक्सॉस्ट तो पूरा वेस्ट हो सकता है, अभी उसको जो हीट है वो निकालता है रीजनरेटर के मदद से। तो रीजनरेटर इज गिवन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, रीजनरेटर इज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी बिकॉज in the exhaust side the high temperature air is still there in the exhaust part, the temperature will be absorbed by this compressed air. Okay, so effectively to increase the efficiency, regenerator is being used by the gas turbine power plant. Okay, ये पूरा रास्ता आपको जानता है क्या होता है, उसमें अल्टरनेटर है, उसके बाद ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज करता है, एंड कोई आइसोलेटर होगा, सर्क्यूट ब्रेकर होगा और हमारा पावर ग्रिड होगा। ओके, तो ये लेआउट है। अभी बताएंगे क्या होता है एक्चुअली। आप देख सकता है एयर, ये है क्या, ये है हमारा गैस टर्बाइन पावर प्लांट का आइटम। हियर इन द लेफ्ट साइड यू विल बी एबल टू सी द जनरेटर, लेफ्ट साइड पे अल्टरनेटर है, एसी जनरेटर। ये रास्ता से एयर लेता है इनसाइड, ओके एयर, और इधर तो क्या करता है, ये है रास्ता कंप्रेस करने के लिए, ये कंप्रेस करता है, इसी एरिया पे एयर को कंप्रेस करेगा। ओके, तो पहला हो गया एयर इनपुट, ओके फर्स्ट वन, and this is the second one where it is getting compressed, and here you will be able to see the third item where the oil it is injected, oil इंजेक्ट करता है, डीजल जैसा ऑयल उसमें इंजेक्ट करता है। ऑलरेडी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है सेकंड सेक्शन में, उसमें ये डीजल इंजेक्ट करे तो ये डीजल बर्न हो जाएगा। ओके, ये डीजल विल बी गेटिंग बर्न्ड एट ए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर में। सो ये फ्यूल इंजेक्शन बताता है इधर, तो इधर बहुत आग लगेगा, आग, फायर विल बी हियर, बिकॉज ऑफ द फायर this turbine shaft, this is known as turbine shaft, this turbine shaft actually it is connected to the alternator, it will be rotating. Okay, now the turbine shaft will be rotating by the fire produced here, the turbine will be rotating and it is rotating the alternator. So ये होता है इसमें हमारा गैस टर्बाइन पावर प्लांट में। आप देख सकता है अभी बाहर से एयर लाता है, कंप्रेस भी कर सकता है, और ये ड्राइव शाफ्ट है मेन, और वो रोटेट करता है अल्टरनेटर को। ओके, तो इधर एयर कंप्रेस करता है, आग लगाता है, आग लगा के टर्बाइन को रोटेट करता है, वो रोटेट करके ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो ये है गैस टर्बाइन पावर प्लांट। तो इसमें क्या क्या पार्ट से हम बताएंगे, कंप्रेसर, बाहर एयर से कंप्रेस करना है,
जो एयर हम एटमोसफियर से आता है उसको कंप्रेस करना है, कंप्रेसर का ड्यूटी। रीजनरेटर इट इज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, वो बाहर एक्सॉस्ट गैस का टेम्परेचर लेता है और इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। और कंबस्टन चेंबर आपने देख लिया, कंबस्टन चेंबर में क्या करता है, ऑयल, ये डीजल वगैरह चीज बर्न करता है, उसको बताता है कंबस्टन चेंबर। और गैस टर्बाइन है फाइनली आइटम विच इज रोटेटिंग द टर्बाइन। एडवांटेज क्या है, तो ये बहुत सिंपल डिजाइन है, कम कैपेसिटी तो आसान से ये डिजाइन कर सकता है, उसमें कोयलर बॉयलर वगैरह नहीं है। ये स्टीम पावर प्लांट में तो आप देखा होगा बॉयलर वगैरह, उतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आसान से कर सकता है। ओके, स्टीम पावर प्लांट सेम कैपेसिटी सोचे तो स्टीम पावर प्लांट से कम साइज का होगा इसका इफेक्टिव साइज, सो स्मॉलर साइज है इसका। ओके, अभी इनिशियल कॉस्ट वो भी कम होगा, उसका इनिशियल कॉस्ट भी कम होगा। इसमें पानी का आवश्यकता बहुत बहुत कम है, क्योंकि पानी का आवश्यकता बहुत कम है। और इट कैन बी स्टार्टेड क्विकली, जैसा हमारा इंजन स्टार्ट करता है ना, हमारा गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता है, बहुत आसान से ये कर सकता है। कोल्ड भी है तो आसान से गैस टर्बाइन प्लांट स्टार्ट कर सकता है। उसमें स्टैंड बाई लॉस नहीं। क्या है स्टैंड बाई लॉस, कोई आउटपुट नहीं है, उसको अभी भी चालू करना है तो उसको बताता है स्टैंड बाई लॉस। स्टैंड बाई लॉस आप देखा होगा, डीजल इंजन हमारा ट्रेन का, वो स्टेशन पे आ गया तो भी कुछ देर है तो भी ऑफ नहीं करता है, क्योंकि वो फिर स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ऑफ नहीं करेगा। जैसा हमारा न्यूट्रल ना, उसमें रखेंगे तो इनपुट होगा उसमें लेकिन आउटपुट नहीं है, उस कंडीशन को हम बताएंगे स्टैंड बाई। तो स्टीम पावर प्लांट को और डीजल इंजन ऐसा वगैरह को स्टैंड बाई लॉसेस होगा, क्योंकि वो एक बार स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये गैस टर्बाइन पावर प्लांट इट कैन बी स्टार्टेड क्विकली, so it is requiring no standby. If no output is required, we can switch off the power plant. That is the advantage. Now we'll be seeing some disadvantages of also of our gas turbine power plant. ये पहला, कंप्रेसर शुरू करना है तो उसको बाहर से सोर्स पावर चाहिए। जैसा हमारा इंजन को चलाना है तो हम क्या करता है, एक बाइक है आपके पास, तो आपको किक स्टार्ट करना होगा, नहीं तो स्टार्टिंग मोटर के मदद लेना हो, तो उसको बताता है एक्सटर्नल सोर्स। ओके, हमारा कंप्रेसर को भी, एक गैस टर्बाइन पावर प्लांट का कंप्रेसर को भी एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। एंड हियर द प्रॉब्लम इज कंप्रेसर एक बार चालू हो गया तो भी ये अल्टरनेटर से पावर लेता है, तो एक बार स्टार्ट कर दिया, ये अल्टरनेट का आउटपुट से ही ये कंप्रेसर चलाता है, तो एफिशिएंसी कम है और नेट आउटपुट, फाइनल आउटपुट कम है, एफिशिएंसी कम है, 20% ही होगा। हमारा स्टीम पावर प्लांट का 25-30 है, मैक्सिमम 50 भी हो सकता है मैक्सिमम कंडीशन। लेकिन ये गैस टर्बाइन पावर प्लांट का एफिशिएंसी बहुत कम है, क्योंकि आउटपुट अल्टरनेटर देता है, वो अल्टरनेट से ही लेके हमको क्या करना है, ये कंप्रेसर चलाना है। ओके, सो प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम ये है, इसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर बड़ा हेवी है, 1600 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसका मटेरियल का लाइफ कम होता है। ओके, सो ये डिसएडवांटेज भी है गैस टर्बाइन पावर प्लांट के लिए। तो ये आपने देख लिया, हमारा रेफरेंस है निमी का टेक्स्ट से, और यूट्यूब चैनल पे आप पूरा वीडियो देख सकता है। This is the visual classroom brought to you by DGT, hosted by Nimi Chennai and co-hosted by NST Calicut. My name is Prasad. Thank you.